जी, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर बेसिकली होते क्या हैं, पहले इसका जिक्र कर लेते हैं कि इफ एनी टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय वैक्यूम या सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक फॉर्म अ कैपेसिटर। Initially, when capacitor is not charged, initially mean the each conductor has zero net charge. इसका बेटा ये मतलब है कि जीरो चार्ज का ये मतलब नहीं चार्ज ही नहीं है, मैंने कहा जीरो नेट चार्ज मीन देयर इज अ चार्ज ऑन ईच कंडक्टर बट as much positive charge as negative, so the net charge on each conductor is zero. So when we charge a capacitor, charging a capacitor means you will have to remove electrons from one conductor and carry those electrons to the other conductor. So at the same time, one conductor is, you're making one conductor more and more negative, and at the same time the other conductor is becoming more and more positive. How we charge a capacitor practically we connect those two conductors via wires to the opposite terminal of a battery. This is how we charge a capacitor. So after charging the capacitor, the net charge on the capacitor is still zero, because on one conductor there is as much positive charge as negative on the other conductor. So the net charge of the capacitor is still zero. ठीक है, लेकिन बेटा आपने पढ़ा होगा प्रॉब्लम्स के अंदर, या आपने पीछे भी ये चीज पढ़ी होगी कि हम कहते हैं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज लेट्स से कैपिटल Q. So if we say the charge on a capacitor is capital Q, it means one conductor carries plus Q charge and the other carries minus Q charge. The conductor at higher potential carries plus capital Q charge, and the conductor at lower potential carries a minus capital Q charge. बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। ओके, सो अभी मैंने बात की कि the conductor at higher potential carries plus Q charge and conductor at lower potential carries minus Q charge. So it means there will be a potential difference between these two conductors, and that potential difference will be equal to this. ये बेटा पीछे हम डेफिनेशन करके आए हैं, वहां पे सिर्फ हमने नोटेशन यूज की थी V at B, और B पॉइंट हमने कहा था एट हायर पोटेंशियल माइनस V at A, और हमने कहा था A पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल माइनस A to B E dot dl. ये पीछे हम डेफिनेशन देख के आए हैं, वहीं से मैंने लिखा. Okay, so you are making one conductor more and more positive and the other conductor more and more negative by transferring the charge. So it means potential difference is increasing. ठीक है, जब आप चार्ज ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, एक ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होता है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन से भी क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, बट एट द सेम टाइम चार्ज इज आल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, और चार्ज विल इंक्रीज विद द सेम रेट, ठीक है, with which the potential is increasing, mean charge to potential difference remains constant. The ratio of charge to potential difference remains constant throughout the charging process. कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मिड वे में कैलकुलेट कर रहे हैं चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो, या फाइनली कैलकुलेट कर रहे हैं जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है. Always charge to potential difference ratio will be same. When there is less charge on each conductor, potential difference will be less. When the charge is greater, potential difference will be greater. So this ratio remains constant, and this is what you say the capacitance of the capacitor. Capacitance is actually the ratio between the charge on the capacitor and the potential difference between the two conductors of a capacitor. बात clear है बेटा? Yes sir. C is called the capacitance, और आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि how you define capacitance. Capacitance is ability to store charge or to store electric energy. ठीक है बेटा? Okay. Capacitance does not depend on charge and potential difference, because you know that charge and potential difference ratio remains constant, and the constant of proportionality is C.
It does not depend on the charge, either on the charge or the potential difference. But C, capacitance is purely a geometrical quantity that depends on the size of the conductors, that depends on the shapes of the conductor, and that depends on the separation distance between the two conductors. ठीक है, एक और भी चीज है जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, दैट इज द मीडियम बिटवीन द टू कंडक्टर्स. बात समझ आ रही है बेटा? यस सर. ओके ओके. और ऐसे यूनिट कैपेसिटेंस की फैरेड है, और फैरेड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब कैपेसिटर के ऊपर 1 कूलम ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी 1 फैरेड. दिस इज हाउ वी डिफाइन फैरेड. This unit of capacitance farad is very large. So normally इतनी बड़ी कैपेसिटेंस का कोई कैपेसिटर आप लैब में यूज नहीं करते हैं. Rather, the more convenient units are the microfarad, that is 10 raised to the power minus 6 farad, or the picofarad, that is 10 raised to the power minus 12 farad. Okay. एक और चीज आपने देखा हो कि ये जो सी है कैपेसिटेंस, इसको बेटा मैंने इटैलिक्स में लिखा था. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जुबान में बात करें तो मैंने सी को इटैलिक्स में लिखा, यानी थोड़ा सा टिल्टेड है ये. ठीक है, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो. ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है कि इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सी को आप हमेशा कैपेसिटेंस को हमेशा आप टिल्टेड या इटैलिक्स में लिखेंगे. उसकी वजह यह है कि स्टेट सी यूज होता है for the SI unit of charge, coulomb. ठीक है ना? So do not confuse the SI unit coulomb with this notation capacitance. ठीक है? Capacitance is always written in italics. जितनी भी आप बुक्स देखेंगे capacitance को italics में हमेशा राइटर लिखिए. बात क्लियर है बेटा? जी सर. ओके. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट आपके पास पेज, आपके सामने पेज ये है, स्लाइड ये है. तो अभी हमने बात की कि हम क्या करते हैं कि हाउ वी चार्ज अ कैपेसिटर. प्रैक्टिकली तो आपको पता है कि आप दो कंडक्टिंग वायर्स को लेंगे, उन कंडक्टर के साथ अटैच करेंगे और दूसरा एंड ऑपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी उससे ज्वाइन कर लेंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाए. और बैटरी कर क्या रही होगी? बैटरी इज एक्चुअली, this is the work done by the battery. Battery is actually removing the electrons from one conductor and transferring those electrons to the other conductor. So इसके लिए पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि प्लस डी क्यू ना एक कंडक्टर से रिमूव करते हैं और दूसरे कंडक्टर पे ले जाते हैं. तो अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो मर्जी है, डजंट मैटर, कि आप रिमूव करके दूसरे कंडक्टर पे ले जाते हैं, तो बेटा जिससे आप प्लस डी क्यू रिमूव करेंगे, दूसरे उस कंडक्टर पे माइनस डी क्यू चार्ज आ जाएगा. बात समझ आ रही है ना? जी सर. ओके. तो आप एक कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव करके ले जा रहे हैं दूसरे कंडक्टर पे, तो होगा क्या? क्योंकि बेटा जो कंडक्टर जिससे रिमूव करें वो नेगेटिव है और आपने प्लस डी क्यू को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना है, तो बेटा क्या होगा कि हमेशा यूं होगा कि जब आप प्लस डी क्यू रिमूव करके ले जा रहे होंगे तो क्यों वो नेगेटिव प्लेट है वो उसे अपनी तरफ पुल करेगी. ठीक है, और जो जिस प्लेट पे आप लेके जा रहे हैं उस पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज, आप लेके भी पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, तो वो उसे रिपेल करेगी. तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा कैपेसिटर को चार्ज करने में. बात समझ आ रही है? जी सर. ठीक हो गया. ओके, तो यही वो वर्क है जो बैटरी कर रही है. That will be stored in the capacitor as potential energy. So हम इसीलिए कहते हैं कि capacitor is a device to store electric energy. बात समझ आ रही है? और बेटा आइडिया वही सिंपल है कि लेट्स से कि एक कैपेसिटर को हम चार्ज करना चाहते हैं, अप टू अ चार्ज कैपिटल Q. ठीक है, और जब कैपिटल Q तक चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों कंडक्टर्स के दरमियान, कैपिटल V. बात समझ आ रही है? लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज में अभी हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर का चार्ज है स्मॉल q और उस वक्त प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V प्राइम. इंटरमीडिएट स्टेज. बात समझ आ रही है बेटा? जी सर. ओके, तो जब हम इस
इंटरमीडिएट स्टेज में जब हम प्लस डी क्यू रिमूव करके दूसरी कंडक्टर पे लेके जाते हैं तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? ओके बेटा, वो वर्क हमें इतना करना पड़ेगा, dq the charge that you are transferring to the other conductor multiplied by the potential difference at that location, yeah, at that time when you are removing plus dq and transferring it to another conductor. So the work done by you, mean by the battery, will be potential difference v prime into dq. बात समझ आ रही है? आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, C is equal to Q divided by V prime is always remains constant. So जो potential difference होगा उस वक्त V prime हम कह सकते हैं that will be Q divided by C. क्लियर है? ये वैल्यू बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी. सो A प्लस डी क्यू को एक कंडक्टर से रिमूव करके दूसरे कंडक्टर तक ले जाने में आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, यानी बैटरी को इतना वर्क करना पड़ेगा. बात समझ आ रही है? तो बेटा जी सर. होल कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट विल बी, यू विल हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियली चार्ज Q इज 0, इनिशियली जस्ट जब आपने चार्जिंग स्टार्ट की Q वाज 0, और अप टू कैपिटल Q आपने चार्ज करना है. बेटा ये इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 टू कैपिटल Q. ठीक है, अपर लिमिट देंगे तो ये कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0. ठीक है, वेयर Q, you know that Q is equal to C times V. हाँ, अच्छा 1/c में यहाँ बाहर ले गया हूँ क्योंकि C इज कांस्टेंट, आपको पता है. ठीक है ना, Q की ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मेरे पास ये चीज आ जाएगी और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी. बेटा आपने पिछली क्लासेस में यही एक्सप्रेशन पढ़ी होगी. ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर. बात समझ आ रही है? जी सर. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. ठीक है, ये आपने पिछली क्लास में ये एक्सप्रेशन याद की होगी. तो बेटा ये उसी यानी कि उसी तरीके से आती है जिस तरीके से हम पीछे एनर्जी पढ़ के आए हैं कि हम चार्ज को ला रहे हैं कहीं दूर से और वहां पे एक जगह रख रहे हैं स्पेस में, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा. तो वही रूल यहाँ पे भी यूज हो रहा है. अच्छा, एक चीज मैंने इस आर्टिकल में बेटा बात की है, मैंने कंडक्टर्स को प्लेट्स कहा है. ठीक है ना, तो बेटा प्लेट्स का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मसलन है तो उसी के कंडक्टर को प्लेट्स कह सकते हैं. प्लेट्स आप कंडक्टर्स को कह सकते हैं किसी भी शेप का हो सकता है, चाहे तो वो फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप हो, फ्लैट स्क्वायर शेप हो, फ्लैट सर्कुलर शेप हो. ओके, इवन वो अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है या स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें कर्व सर्फेसेस इन्वॉल्व हैं, तो इवन उन कंडक्टर्स को भी आप प्लेट्स ही कहते हैं. बात समझ आ रही है? तो याद रखिए प्लेट्स ये नहीं है कि सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडक्टर्स को हम प्लेट्स कहेंगे. बात समझ आ रही है? यस सर. और एक और चीज भी मैं क्लियर कर दूं कि मसलन आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं कैपेसिटर के सिंबल को दो पैरेलल लाइन से डिनोट किया जाता है. आप सर्किट में दो पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं कैपेसिटर को. तो याद रखिएगा कि उन दो पैरेलल लाइंस का ये मतलब नहीं है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ठीक है, इवन दैट कैपेसिटर कैन बी ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, दैट कैपेसिटर कैन बी ए स्फेरिकल कैपेसिटर. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय टू पैरेलल लाइन. कैपेसिटर का सिंबल पैरेलल लाइन है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर मीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो सिंबल नहीं है. बात समझ आ रही है? वो कैपेसिटर के लिए, वो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है. बात क्लियर है बेटा? यस सर. ओके, अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. ठीक है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ठीक है, ये उसकी दो प्लेट्स हैं पैरेलल, और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है बेटा वो है वैक्यूम या फ्री स्पेस. ठीक है, ईच प्लेट का जो एरिया है दैट इज कैपिटल ए, और द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज स्मॉल डी. और टॉप प्लेट पे ये कैपेसिटर को हमने चार्ज किया हुआ है, टॉप प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बॉटम प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और प्लस क्यू चार्ज होगा ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ टॉप प्लेट और माइनस क्यू चार्ज होगा
ऑन द टॉप सरफेस ऑफ बॉटम प्लेट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर्स हैं तो अट्रैक्शन की वजह से इस तरह होगा। अच्छा, मैं कहता हूं कि चार्ज इज क्योंकि चार्ज हमने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो सिग्मा विल बी यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म नॉट ओनली ऑन द टॉप प्लेट बट आल्सो ऑन द बॉटम प्लेट। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी टॉप प्लेट पे पॉजिटिव सिग्मा है और बॉटम प्लेट पे माइनस नेगेटिव सिग्मा है। ठीक है, पॉजिटिव सिग्मा का मतलब है हाउ यू डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, बिकॉज टोटल चार्ज इज प्लस क्यू, टोटल एरिया इज ए, सो प्लस सिग्मा का मतलब है प्लस क्यू डिवाइड बाय, और माइनस सिग्मा की मीनिंग है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए। बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, अब बेटा इस कैपेसिटर का ये मैं फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए मैं ये फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ नेक्स्ट फिगर में। ओके, उसकी तरफ चलते हैं। ये बेटा आपके सामने है, आपके सामने है ये मैंने उन प्लेट्स का फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। ये टॉप प्लेट के बॉटम सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बॉटम सरफेस के बॉटम प्लेट के टॉप सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये दिखाया गया है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, आपको पता है बेटा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैपेसिटर के लिए ये होंगी। और बेटा एजेस पे हम आपके पास फ्रिंजिंग फील्ड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, लेकिन ये थोड़े से पोर्शन पे आपको नॉन यूनिफॉर्म फ्रिंजिंग फील्ड मिलेगी। वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट या डिस्कार्ड या इग्नोर, we are going to ignore this fringing field at the edges of the capacitor plate. So in between the plates you can see that field is uniform. आप ऐसा पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं कि कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। और यूनिफॉर्म फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं बेटा? इक्वली स्पेस पैरेलल लाइंस। मैंने कोशिश की है कि मैं ये इक्वली स्पेस पैरेलल लाइंस आपको शो कर सकूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। ठीक हो गया। अब क्या है कि एक प्लेट z इज इक्वल टू 0 पे पड़ी है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, मैंने ओरिजिन इस प्लेट के इस एंड पे रख लिया, ठीक है ना, यहाँ पे ओरिजिन रख लिया, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस अपवर्ड, दिस इज पॉजिटिव z एक्सिस। So this plate is at z is equal to 0 and this is at z is equal to d। उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन these two plates was small d। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें बेटा, ये आपने एग्जांपल 2.5 में पीछे फाइंड करके आए होंगे कि आपको दो क्या कहते हैं, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैं जिनके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पे प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक पे माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और 2.5 एग्जांपल में ग्रिफिथ ने आपको कहा था कि इन बिटवीन and above the positive plate or below the negative plate आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, एवरीवेयर आप फील्ड फाइंड करें, तो ये तीन रीजन बनते हैं। तो बेटा आप गॉसेस लॉ की मदद से बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, above the positively charged plate electric field is 0, below the negatively charged plate electric field is 0। ठीक है, वहां आपने कैलकुलेट किया होगा। जब इन बिटवीन सिर्फ कैपेसिटर प्लेट के एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एग्जांपल 2.5 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो डायरेक्शन थी फील्ड की आपने कहा था अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। यही वो केस थी। बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बेटा आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने ई डॉट डी एल फाइंड करना होता है, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो हम डीएल क्या है, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट हम जो पाथ फॉलो करते हैं, अगर उसको स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करें तो डीएल इज वन ऑफ दोज लेंथ एलिमेंट। तो बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की मैं ये पाथ बनाता हूँ, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट पाथ बनाता हूँ।
ये पाथ बेटा मैं कोई किसी भी शेप का ले सकता हूं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस तो इंडिपेंडेंट है ऑफ द पाथ, ये डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे, ठीक है। जी इनिशियल सर। पॉइंट z इज इक्वल टू 0 है, फाइनल पॉइंट z इज इक्वल टू d है। तो चाहे आप पाथ कर्व बनाएं, चाहे जिगजैग बनाएं, फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो यही रहेंगे, z इज इक्वल टू 0 इनिशियल पॉइंट रहेगा, z इज इक्वल टू d फाइनल। तो क्योंकि ये E डॉट d है, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, हम पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए पाथ आप कोई सा भी बना सकते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए यही मैंने यहाँ बात देखी है कि ये इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव कंडक्टर बिकॉज इट डिपेंड ओनली ऑन द initial and the final point. So let us simply take a path straight up along the axis, यानी कि मैं straight path बनाता हूँ from negative plate to positive plate, और इसको मैं small length element में divide करता हूँ। तो dl ये यहाँ मैंने किया हुआ है, dl is one of those length element, और इस dl वेक्टर क्योंकि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करें तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यानी इन पॉजिटिव जी डायरेक्शन पॉइंट करें। बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बिटवीन द प्लेट्स, कांस्टेंट है, आपको पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कोई स्पेस वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो जाहिर है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो ओके, क्योंकि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट कहने का मतलब है आप इस डायरेक्शन में मूव करें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, आप इस डायरेक्शन में मूव करें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। यानी यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये है कि ना तो ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और फील्ड चेंज नहीं होती, तो क्या चीज चेंज होती है? जी वेरिएबल। इस डायरेक्शन में मूव करें तो वाई वेरिएबल चेंज होता है लेकिन फील्ड चेंज नहीं होती। इसका मतलब है यूनिफॉर्म होने का ये मतलब है कि ई is not a function of either y or z variables। बात समझ आ रही है? ना तो वो y पे डिपेंड करती है ना वो z पे डिपेंड। बात क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इसका मैग्नीट्यूड तो E है और डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस फिगर से, हमने पॉजिटिव z डायरेक्शन अपवर्ड ली हुई है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये आप देख रहे हैं कि इन नेगेटिव z डायरेक्शन है। जी सर। ओके, तो मैं इसलिए ये माइनस जी यूनिट वेक्टर लिखता हूं, ई मैग्नीट्यूड इनटू माइनस जी यूनिट वेक्टर। क्लियर है बेटा बात? यस सर क्लियर। और ई मैग्नीट्यूड हम पीछे कैलकुलेट करके आए हुए हैं 2.5 एग्जांपल में, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय ए। बात समझ आ रही है ना? तो अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो ये है, तो कोई एतराज तो नहीं? ठीक है सर। ठीक हो गया। अब डीएल क्या है बेटा? आपको पता है कि जो डीएल है, ठीक है, डीएल इज दिस वन, क्योंकि ये अलोंग जी एक्सिस है और पॉजिटिव जी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है डीएल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डी जी इंटू जी यूनिट वेक्टर। जी सर। ठीक हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में ई डॉट डीएल इन्वॉल्व है तो हमें ई डॉट डीएल फाइंड करना है। ई हमें पता है ये है, डीएल वेक्टर हमें पता है ये है, तो बेटा डॉट ही लेना है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात तो नहीं है। सो ई डॉट डीएल विल बी माइनस दिस माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डीजी इनटू जी यूनिट वेक्टर डॉट जी यूनिट वेक्टर। बात समझ आ रही है? आपको पता है जी यूनिट वेक्टर डॉट जी यूनिट वेक्टर इज 1, तो आपके पास E डॉट डी एल आ गया माइनस क्यू डी जी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। जी सर। ये वैल्यू बेटा E डॉट डी एल की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएंगे, ये आप यस देख सर। रहे हैं प्लस हो जाएंगे, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए क्योंकि कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले जाता हूं, अंदर सिर्फ रह जाएगा dz। और क्योंकि नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो नेगेटिव प्लेट z पे लिमिट देनी है, नेगेटिव प्लेट किधर है? z इज इक्वल टू 0 पे, और पॉजिटिव प्लेट है z इज इक्वल टू d पे, तो हम बेटा 0 टू d लिमिट देते हैं dz पे। बात समझ आ रही है? यस सर। और इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो z इंटीग्रेशन z आएगी फ्रॉम 0 टू d,
अपर लिमिट देंगे d, लोअर लिमिट देंगे -0, d -0 दैट इज d, so this will be q times d divided by epsilon naught a. ठीक है, where q divided by epsilon naught a, आप जानते हैं कि q divided by epsilon a is the magnitude of electric field. हाँ, यानी E times D, E magnitude times D, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. बड़ा मशहूर एक्सप्रेशन है, आप पिछली क्लासेस में B is equal to E magnitude times D यूज करते आए होंगे बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, ये आ गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस. ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है, और आपको पता है कि कैपेसिटेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं. इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर. तो बेटा यहाँ पे V आप कैलकुलेट कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आएगा Q डिवाइडेड बाय Q times D divided by epsilon naught A, that is multiplied by epsilon naught A by QD. Q के साथ कैंसिल हो गया. तो आपके पास जो कैपेसिटेंस आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो ये. बात समझ आ रही है? तो बेटा मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ C वैक्यूम. मैंने सबस्क्रिप्ट में वैक यूज किया ताकि याद रहे कि C वैक्यूम की हम बात करें. C वैक्यूम कहने का मतलब ये है कि the medium between these two parallel plates is vacuum or free space. आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है epsilon naught परमिटिविटी कि हम वैक्यूम लेके या फ्री स्पेस लेके हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं. बात समझ आ रही है? यस सर. अच्छा, अगर बेटा कोई डाई इलेक्ट्रिक आप रखते हैं इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के दरमियान आप इंसर्ट करते हैं डाई इलेक्ट्रिक, तो जाहिर है ये जो परमिटिविटी है, जो भी डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं उसकी परमिटिविटी आएगी. ठीक है ना? तो मैं इसे जनरलाइज कर रहा हूं कि इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स द कैपेसिटेंस विल बी, मैंने सबसे में डाई लिख लिया है ताकि याद रहे कि दिस इज कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, where epsilon is the permittivity of this dielectric, A is the area of each plate and D is the separation between two plates. आपको पता ही है. बात समझ आ रही है? Yes, और sir. आप ये भी जानते हैं, आप पीछे पढ़ के आए कि एप्सिलॉन परमिटिविटी किसी मीडियम की होती है कैपा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, वेयर कैपा इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट यू नो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये अगर वैल्यू एप्सिलॉन की मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बेटा C डाइलेक्ट्रिक आ जाएगी कैपा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D, where epsilon A by D is C vac, kappa times C vac. बात समझ आ रही है? जी सर. पीछे जब आप बेटा कूलम लॉ पढ़ रहे थे और डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे तो आपको याद होगा कि मैंने कहा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपा इज 1 एंड दैट इज फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, जबकि बाकी तमाम डाइलेक्ट्रिक्स के लिए कैपा ग्रेटर देन 1 है. मसलन मैंने एयर के लिए आपको बताया कि एयर के लिए आप पिछली क्लासेस में कैलकुलेशन की आसानी के लिए बुक में आपको कहा जाता था कि आप एयर के लिए भी कैपा 1 लें, लेकिन कैपा इज नॉट एग्जैक्टली 1 फॉर एयर, दैट इज 1.0006. ठीक है ना? तो कैपा की वैल्यू ग्रेटर होती है हमेशा 1 से लेस नहीं हो सकती. ठीक है, तो कैपा इज ग्रेटर, तो इसका मतलब है कि ग्रेटर नंबर से C वैक्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तब C डाइलेक्ट्रिक आएगी, यानी C डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन C वैक्यूम. या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक रख देने से दोनों प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की इंक्रीज हो जाती है. बात समझ आ रही है? यस सर. ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने पीछे कहा था कि इट डिपेंड्स ऑन द शेप की तो बाद में बात करते हैं, शेप भी हमने कहा था, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द टू कंडक्टर्स. तो आप देखें बेटा A के साथ डायरेक्ट रिलेशन है C का, यानी अगर मैं मीडियम फिक्स कर दूं एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहेगा और सेपरेशन को चेंज ना करूं, ये भी कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हैं कि C डाइलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी कि अगर आप कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया ज्यादा करेंगे, बात समझ आ रही है बेटा? जी सर. एरिया ज्यादा करेंगे तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी. ये मैंने इस एरो से शो किया कि कैपेसिटेंस will increase if area will increase. ठीक है, वाइस वर्सा, if area is decreased capacitance will decrease. बात समझ आ रही है? यस सर. तो हो गई कि it depends on the size of the conductor. एरिया का क्या मतलब, आप साइज चेंज कर रहे हैं, एरिया ज्यादा कर रहे हैं तो साइज ज्यादा कर रहे हैं, एरिया कम कर रहे हैं तो साइज कम कर. सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर. बात क्लियर है? जी सर.
एक और थी कि सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। हमने ये भी पीछे कहा था कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी एक सेपरेशन पे भी डिपेंड करती है। तो बेटा आप देखें कि अगर आप मीडियम फिक्स कर लेते हैं, एरिया फिक्स कर लेते हैं और डी को चेंज करते हैं सिर्फ, तो दिस इज सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डी, ठीक है ना। यानी सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग डी कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, वाइस वर्सा इंक्रीजिंग डी कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। So it depends on the separation between the two conductors, clear है। एक हमने बात की थी कि इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द, तो वो तो अभी हमने बात की है कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है, तो उसका मतलब है कि मीडियम पे तो डिपेंड करती है। ग्रेटर इज द कैपा वैल्यू, यू कैन सी दैट मैं एरिया और सेपरेशन दोनों को चेंज नहीं करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि सी डाइलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपा। द ग्रेटर विल बी द कैपा वैल्यू ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, the more will be the capacitance, यानी more will be the ability to store charge। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। आगे चलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे पहले मैं नेक्स्ट मीटिंग बेटा, उसका लिंक आपको नेक्स्ट मीटिंग का ये